guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's lecture, we are going to start with class 10th Geography chapter 4th named as Agriculture. Agriculture, when we talk about this term agriculture, the one thing that instantly comes in our mind is farming, growing क्रॉप्स. ठीक है, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एक चीज जो इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आती है इज फार्मिंग. ठीक है, फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग क्रॉप्स, राइट? ग्रोइंग क्रॉप्स दैट आर बोथ food crops and non-food crops. Then agriculture also involves allied activities such as rearing of cattle, animal husbandry, poultry farm, बी रेयरिंग्स. ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती है? हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही आती हैं. ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज एग्रीकल्चर, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन. इट इज द साइंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स by the cultivation of land. Cultivation करके land का उस पे crops grow करना is agriculture and also comprise allied activities like poultry farms, animal husbandry and dairy farming. ये सारी activities किसके अंदर आती है? Agriculture के अंदर. Agriculture जो है is regarded as the backbone of our Indian economy. Agriculture को Indian economy की backbone बोला जाता है. Why it is called so? Because 70% of our population is engaged in agricultural activities. They are earning their livelihood by performing or doing agricultural activities, right? Mahatma Gandhi called agriculture as the backbone of Indian economy in 6th decade, right? That's why it is always considered that agriculture plays a very important role in economy of India. Now we have talked about agriculture. Agriculture क्या है अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए. Agriculture is comprising of both, that is farming as well as rearing of cattle in the form of like animal husbandry, dairy farming or poultry farms, right? Now let's have a look at what is farming. As in this chapter named as agriculture, we are going to discuss about what is agriculture, what is farming, types of farming, cropping patterns that are prevalent in India, major cropping seasons in India. Then we are going to discuss about the crops that are food crops and non-food crops. ऐसे crops जो कि हम खाते हैं that are eatable and the crops which are not eatable like jute, cotton, rubber. ये सारे कैसे हो जाएंगे? नॉन फूड क्रॉप्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स दैट आर सीरियल, पल्सेस, ये सारी चीजें किस में आएंगी? मिलेट्स. ये सब किस में आएंगे? हमारे फूड क्रॉप्स में, जो कि हम क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, ये सब पढ़ने वाले. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ एग्रीकल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग आवर इकोनॉमी. फिर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है एग्रीकल्चर पे? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस chapter. Now let's have a look what the definition of farming says. It is the business of growing crops and rearing livestock. Farming क्या है? एक business है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? Crop को grow कर रहे हैं और livestock को rear कर रहे हैं. That is what farming is. अब हम देख लेते हैं types of farming. There are 3 types of farming: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. We are going to discuss these types of farming one by one in detail. The first type of farming is primitive subsistence farming. इस farming में होता क्या है? It is a slash and burn farming. Slash and burn farming, farmers clear a patch of land and produces cereals and other food crops. When the soil fertility decreases, the farmer shifts and clear a fresh patch of land for cultivation. देखो इस तरीके की फार्मिंग में होता क्या है? बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन. जब हमें फार्मर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो रिड्यूस हो गई है, व्हाट दे डू इज वो वहां पर उस लैंड को क्लियर कर देते हैं. ठीक है, वहां पे जलाकर उस लैंड को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं ताकि क्या है, थोड़ा टाइम उस लैंड को छोड़ दिया जाए ताकि वो जो फर्टिलिटी है सॉइल में वो वापस सॉइल जो है वो रिगेन कर सके. एंड व्हाट दे डू, दे शिफ्ट फ्रॉम दैट लैंड टू द अदर, राइट?
अब इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, डिफरेंट नेम से जाना जाता है, किसको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। जूमिंग बोला जाता है इसको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसको जूमिंग टेक्निक बोला जाता है। फिर पामलो बोलते हैं इसको मणिपुर में, दीपा बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार के अंदर, और दहिया इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश में। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब जैसे कि नाम है इसका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, पहले का, तो इसमें जो टूल्स हैं वो भी कैसे यूज होंगी, पुराने तरीके की टूल्स, जैसे कि हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स होती है, और इसके अंदर लेबर कौन होती है, फैमिली या वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी उस फार्म पे वर्क कर रही होती है वही इसमें फार्मिंग करते हैं, लेबर वही होते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, सबसे ज्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे, कि रेनफॉल कैसी होती है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉनसून पे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जब इनको ये रियलाइज हो जाता है कि इस सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, दे शिफ्ट टू द अदर लैंड, लीविंग दैट लैंड टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी अगेन, राइट। सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक क्रॉप ग्रोन्स, ये भी देखना जरूरी है कि कौन से क्रॉप हम कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। हर एरिया में कोई भी क्रॉप जरूरी नहीं है कि हर एरिया में सारे क्रॉप्स ग्रो हों, सो वो देखना भी जरूरी है। ये सारी चीजें हैं हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस farming. This type of farming is practiced in the area of high population pressure on land. ये ऐसे एरियाज में की जाती है इंटेंसिव फार्मिंग जहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और ये जैसे कि नाम है इसका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इसमें जो लेबर है वही इंटेंसिव फार्मिंग कर रही है। ये जो है क्या यूज कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स इनपुट एंड इरिगेशन फॉर हायर प्रोडक्शन। ये बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि जो भी यील्ड है, जो भी क्रॉप ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हाई क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो सके और ये लोग इसको यूज कर सके। दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव subsistence farming. Now we are going to discuss about commercial farming. Third one is commercial farming. This type of farming uses high doses of modern inputs. इस commercial farming में मतलब हम business के लिए जो farming कर रहे हैं, right? इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, जिस ऐसी सीड्स जो अच्छे यील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारा जब भी हम किसी यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ फार्मिंग को क्या बोला जाता है, कमर्शियल फार्मिंग। और हम हायर क्वांटिटी में गुड्स जो है उनको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल, राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, मतलब बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं हम कहाँ पे, हरियाणा और पंजाब में, बट सब्सिस्टेंस क्रॉप है ये कहाँ पे, उड़ीसा में। अब हम एक पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग में ही प्लांटेशन है। प्लांटेशन क्या है, इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन में होता क्या है, देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच सिंगल क्रॉप, ऐसा होता है प्लांटेशन जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड के अंदर। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, और इन प्लांटेशन एक सिंगल क्रॉप को ही बहुत लार्ज एरिया के ऊपर ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंसेंटिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ऑल द प्रोड्यूस आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। प्लांटेशन क्या होता है बेटा, प्लांटेशन जनरली हमने सुना है कि किसका किया जाता है, टी का, कॉफी का, ये सारे क्या बिवरेजेस हैं, ठीक है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना ना कि घर के पीछे हमारा टी का प्लांटेशन हो रहा है, टी उगा रहे, कॉफी उगा रहे, नहीं, इनके क्या होते हैं, बगियान होते हैं। तो ये जो चीजें है ना प्लांटेशन, ये क्या है, एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड के ऊपर। प्लांटेशन किस किस का होता है, टी का, कॉफी का, रबर, बनाना, शुगर केन, इन सब का क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। ये हो गए थे हमारे फार्मिंग, हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर क्या होता है। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Now we are going to start with cropping patterns in India. It can be inferred as the arrangement and the combination of the different crops cultivated in a particular area. ये क्या है, ऐसा अरेंजमेंट कि कौन से क्रॉप्स डिफरेंट एरियाज के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और इस ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे क्लाइमेट पे, पानी की अवेलेबिलिटी पे, मार्केट की डिमांड कितनी है उस चीज के लिए, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे कि उस एरिया में किस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो
प्रेवलेंट है, राइट। अब क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो 3 तरीके का होता है। मिक्स्ड कल्टीवेशन, मिक्स्ड कल्टीवेशन में क्या होता है, एक ही एरिया ऑफ लैंड के ऊपर हम एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं सेम लैंड पे, वो होता है हमारा मिक्स्ड कल्टीवेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है, जैसे आज हमने इस लैंड के ऊपर राइस उगा ली, फिर एक सिक्वेशनल गैप देकर हमने वहां पे क्या उगा लिया, वीट उगा लिया। तो इस तरीके से जब हम एक लैंड पे कुछ सिक्वेशनल चेंजेस के बाद दूसरे क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। थर्ड वन इज आर सोल क्रॉपिंग, जैसे कि हमने प्लांटेशन में पढ़ा, एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है, तो इसमें भी क्या होता है, ओनली अ सिंगल क्रॉप हैज बीन ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, वो होती है हमारी सोल क्रॉपिंग। I hope it is clear. Now we are going to start with our next topic, that is cropping seasons in India. After discussing about the cropping patterns that are prevalent in India, we have discussed about types of cropping pattern, which are crop rotation, mixed cropping and sole cropping. After that, we are going to discuss about cropping seasons in India. In India, there are 3 cropping seasons which are basically named as रबी सीजन, खारिफ सीजन एंड जायद। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये मैंने टेबुलर फॉर्म में इसलिए बनाया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टेबुलर फॉर्म में हमें इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं हम, हाँ इस मंथ में ये, इस मंथ में ये, इस मंथ में ये, इस सीजन में ये हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोइंग सीजन, इसको बोने का मतलब क्रॉप को बोने का सीजन कब आता है। तो रबी जो है विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, रबी क्रॉप्स जितने भी हैं उनको कब बोया जाएगा, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। खरीफ जो है बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन और अप्रैल और मई के बीच में इनको बो दिया जाएगा। जायद क्या है, इन बिटवीन दिस रबी एंड खरीफ सीजन एक शॉर्ट सीजन आता है, उस सीजन को बोला जाता है जायद सीजन, और ये मार्च टू अप्रैल के बीच में आता है। ठीक है, सेकेंड इज हार्वेस्टिंग सीजन। अब इनकी हार्वेस्टिंग कौन से महीने में होगी, तो समर अप्रैल टू जून, सर्दी में हमने बो दिया, गर्मी में हम समर के टाइम में हम इसको बो रहे हैं, काट रहे हैं। खरीफ इज सितंबर टू अक्टूबर एंड जायद इज मई टू जून। थर्ड इज इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया, रबी जो है इसको हम इसमें उगाएंगे, इसमें हार्वेस्ट करेंगे, खरीफ को इस सीजन में उगाएंगे, इसमें हार्वेस्ट करेंगे, मंथ में सॉरी, और जायद को इस मंथ में हम उगाएंगे और इस मंथ में हार्वेस्ट करेंगे। बट ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जो रबी सीजन में उगाए जाते हैं, खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं और जायद सीजन में उगाए जाते हैं। देखिए, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये सारे कैसे हैं हमारे रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सारे हमारे कैसे हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, ये खरीफ सीजन के अंदर उगाए जाते हैं। अब इसमें एक नोट है, इन स्टेट्स लाइक, देखो कौन से 3 स्टेट्स हैं, ये इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें पैडी जो है 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रो किए जाते हैं, और वो तीनों क्रॉप कौन से हैं, अस, अमन एंड बोरा। ये 3 स्टेट्स में पैडी के 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। और जायद की बात करेंगे हम तो इसमें आ जाता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और जितने भी फॉडर क्रॉप्स हैं वो सारे कौन से सीजन में उगाए जाएंगे, जायद सीजन में। आफ्टर दैट एरिया, कौन कौन सा एरिया मतलब कौन से स्टेट्स के अंदर इनका कल्टीवेशन किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट रबी तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल। व्हेन वी टॉक अबाउट खरीफ सीजन तो असम, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर आवर क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, कौन कौन से, रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, रबी आपको ये याद रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि कौन सा ऑनसेट होता है, कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कब इसकी सोइंग होती है, कौन कौन से, बेसिकली इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन कौन से क्रॉप्स हैं। आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, उन 4 में से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्रॉप जो है वो खरीफ है, कौन सा जायद है और कौन सा रबी है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स, cropping seasons that are prevalent in India, now we are going to study about major crops in India. We have discussed about cropping seasons that are Rabi, Kharif and Zaid. Now we are going to discuss major crops that are being grown in India. अब क्रॉप को ग्रो करने के लिए इंडिया पे किस किस चीज पे डिपेंड होना पड़ता है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हम क्या अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स 2 तरीके के होते हैं, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स।
फूड क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स होते हैं? जो कि एडिबल होते हैं, हम उनको खा सकते हैं, राइट। एंड नॉन फूड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जिनको हम खा नहीं सकते, वो हम अपने, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हम उनको पहनने के काम में ले सकते हैं, राइट। जैसे रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, नायलॉन, रेयन, ये सब किस में आएंगे आपके पास? नॉन फूड क्रॉप्स में। एंड फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे आपके पास ग्रेन। ग्रेन कैसे हो गए? राइस, व्हीट, पल्सेस, बार्ले, मिलेट्स, ये सब किस में आ जाएंगे आपके पास? ग्रेन में। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे? टी, कॉफी, ये सारे कौन से आ जाएंगे? जो ग्रेन नहीं है। देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ जाएगा आपके पास फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिनको हम ग्रो करते हैं, वो आएंगे हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में भी ग्रेन्स, देन वी विल डिस्कस फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, राइट। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फूड क्रॉप्स, राइट। फूड क्रॉप्स में भी हम पहले ग्रेन्स पढ़ रहे हैं। ग्रेन्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले मेजर सीरियल्स क्रॉप। मेजर सीरियल क्रॉप में हम देखेंगे राइस, व्हीट एंड मेज। अब देखिए, ये मैंने इसको भी टेबुलर फॉर्म में कर दिया ताकि हम क्या है, इसको इजीली लर्न कर सकें। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको समझ नहीं सकते हम, इसे हमें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, राइट। राइस जो है वो कैसा है? खरीफ सीजन में ही आता है। टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। एरिया, कौन से एरिया के अंदर राइस उगाया जाता है? नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड डेल्टिक रीजन्स। फिर कौन से स्टेट्स हैं जहां पे राइस उगाया जाता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तमिलनाडु। फिर इसका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। हम 3 सीरियल क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, राइस, व्हीट एंड मेज। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? राइस। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। किसके बाद? चाइना के बाद। फर्स्ट कौन है? चाइना, एंड सेकेंड इज इंडिया। नाउ व्हीट। व्हीट जो ये रबी सीजन में आ रहा है, इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन। जब इस ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए जब इसकी क्या हार्वेस्टिंग चल रही है। 50 to 75 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन के अंदर इसको उगाया जाता है, ठीक है। एरियाज, फिर स्टेट आता है हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और ये जो है हमारा व्हीट, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है। नाउ थर्ड वन इज मेज। मेज कैसा है? खरीफ सीजन में उगाया जाता है और ये 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। 60 to 110 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है। ओल्ड एलुवियल ट्रैक्स के अंदर मिलता है ये, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इसमें स्टेट्स हैं जहां पे इसको ग्रो किया जाता है। और इसको दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है, एज अ फूड एज वेल एज अ fodder. That's all about our important major cereal crops. We have discussed about rice, wheat and maize. After discussing about major cereal crops, we are going to discuss about millets. Cereal crops हम पढ़ चुके हैं, rice, wheat and maize. Now we are going to study about millets. मिलेट्स जो होते हैं इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन, ठीक है। खड़ा अनाज बोला जाता है इसको। ये बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होल्ड करते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। स्पेशली ये बाजरा, ज्वार जो है ये हम सर्दियों में बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए इन कंपैरिजन टू व्हीट, राइट। तो ज्वार के बारे में अगर आप देखते हैं तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज अ रेन फेड क्रॉप। ये रेन फेड क्रॉप है और ज्वार जो है वो इजीली कहीं पे भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। व्हेन यू टॉक अबाउट बाजरा, ये कौन सी सॉइल पे ग्रो करता है? सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल के ऊपर ही ग्रो करता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या पाया जाता है? बाजरा। इसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। फिर रागी। रागी जो है ये जनरली ड्राई रीजन्स में पाया जाता है। ग्रोज वेल ऑन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी ब्लैक, शैलो ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है। इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड झारखंड। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें इट्स नथिंग मच टू एक्सप्लेन। ये थोड़ा फैक्चुअल चैप्टर है एंड यू हैव टू लर्न दी फैक्ट्स की कौन सा सीजन में कौन सा क्रॉप है, ठीक है। ये सब आपको फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे कि ये ज्वार है तो ज्वार जो है वो कौन से सीजन में प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यू हैव टू लर्न इट, ओके। दिस इज ऑल फॉर millets.
Now we are going to study about pulses. Horticulture crops. जब हम बात करते हैं horticulture crops की, तो in this we are going to talk about fruits as well as vegetables. हमने सुना है pisciculture. Pisciculture is related to fishes. Sericulture, rearing of silkworm. So similarly, this horticulture crop, it deals with fruits and vegetables. So fruits and vegetables. In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after चाइना. चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, पूरे इंटायर वर्ल्ड में. एंड हॉर्टिकल्चर जब भी आता है तो आपके दिमाग में दो ही चीजें आनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब हम देखते हैं ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ के फेमस है. मैंगो. मैंगो हम जैसे कि सुनते हैं महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा अच्छे मैंगो मिलते हैं, राइट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश. ऑरेंजेस, नागपुर फेमस फॉर ऑरेंजेस. चिरनपुंजी, मेघालय. बनानास, केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. यहाँ सब जगह क्या मिलेंगे हमें? बनानास. लीची एंड गुआवा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल, मेघालय. ग्रेप्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल आर फेमस फॉर देम. एप्पल्स का नाम हम सुनते हैं तो एप्पल सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी के कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दैट इज जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वेजिटेबल्स, there are many vegetables such as peas, cauliflower, onion, cabbage, brinjal, tomato and potato. So that's all for our topic named as horticulture. Now we are going to study about non-food crops. So इस चैप्टर के अंदर हम नॉन फूड क्रॉप्स में पढ़ेंगे रबर एंड सेकेंड आर फाइबर क्रॉप्स. तो सबसे पहले देखते हैं रबर. रबर क्या है? एक इक्वेटोरियल क्रॉप है. आपको पता है ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर आ गया 0 डिग्री. तो जो 0 डिग्री है इक्वेटर के पास जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हो जाते हैं, बट इसमें ऐसे क्रॉप्स को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल क्रॉप्स. इन क्रॉप्स को कैसा टेम्परेचर रिक्वायर होता है? मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए. और कौन से एरियाज है जहां रबर प्रोड्यूस होता है? दे आर केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार. रबर जो है हमारे टायर्स बनाने में काम आते हैं. ये हमारी बेसिकली इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं रबर को. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है ये. फिर आता है हमारे पास फाइबर क्रॉप्स. क्रॉप्स विच आर यूज्ड एज फैब्रिक्स. फाइबर क्रॉप्स क्या होंगे? ऐसे क्रॉप्स जिनको हम फैब्रिक के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, राइट, सिल्क. ये सारे क्या आ गए हमारे पास? फैब्रिक क्रॉप्स. कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, थ्रेड से कॉटन बनता है, ठीक है, कॉटन बॉल्स होती हैं. फिर ये हो गया कॉटन. कॉटन के हम कपड़े पहनते हैं, सिल्क के पहनते हैं. जूट जो है वो भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे गनी बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, इन सब में क्या यूज करते हैं हम? जूट. तो ये एक तरीके का क्या हुआ? फैब्रिक हुआ. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉटन. कॉटन इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. इसमें ड्रायर पार्ट्स में हो जाती है ये डेक्कन प्लेट्यू में ग्रो. इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और कम रेनफॉल. फिर 2-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कॉटन ग्रो करने के लिए. फिर कॉटन हमें पता है ये कैसा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं ग्रो करने के अंदर. फिर प्रोड्यूसर्स कौन है कॉटन के? महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्क, तो हमने सबने पढ़ा है पिसिकल्चर, ठीक है. पिसिकल्चर किससे रिलेटेड होता है? फिशेस से. और सेरिकल्चर सिल्क वर्म से, ठीक है. तो सेरिकल्चर इज रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर. नाउ fibers which are obtained from the cocoon, ये cocoon of the silkworm fed on the green mulberry leaves. इससे हमें क्या मिलता है? सिल्क. सिल्क क्या है? सीधे उगती नहीं है, पर इसको हम लेते हैं किससे? सिल्क वर्म से. और वो किस पे फीड करता है? लीव्स ऑफ मलबरी, राइट. और ये जो कॉटन और जूट है ये उगाए जाते हैं. अब हम आते हैं जूट के ऊपर. जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है. व्हाई जूट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन फाइबर?
क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसा है? गोल्डन ब्राउनिश कलर होता है। ग्रोज वेल ऑन अ वेल फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर। ऐसी सॉइल पे ग्रो करती है जूट जहाँ पे हर साल वो सॉइल जो है वो रिन्यू हो जाती है। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। इसके प्रोड्यूसर्स है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जूट का क्या यूज होता है। गनी बैग्स बनाना, रोब्स बनाना, मैट्स बनाना, इन सब में हम किसको यूज करते हैं? कारपेट्स बनाना, आर्टिफैक्ट्स, सब में हम किसको यूज करते हैं? जूट। डन विद नॉन फूड क्रॉप्स एज वेल एज फूड क्रॉप्स। सो लेट्स हैव अ लुक। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वी आर डन विद टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने 3 तरीके की फार्मिंग पढ़ी थी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद हमने पढ़े थे क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स में हमने पढ़ा था मिक्स्ड क्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग। उसके बाद हमने देखा था क्रॉपिंग सीजन्स। 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स है इंडिया के अंदर, खरीफ, रबी एंड जायद। फिर आते हैं हमने पढ़े मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स हमने 2 तरीके के पढ़े, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा था? रबर एंड फाइबर क्रॉप्स। और फूड क्रॉप्स के अंदर हमने क्या पढ़े थे? सीरियल क्रॉप्स, मिलेट्स, है ना, क्रॉप्स अदर देन फूड, ये सारे हमने किसमें पढ़े थे? फूड क्रॉप्स। ये इतना पोर्शन वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुई और एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है। Technological and institutional reforms. In this topic, we are going to study about क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट लाई है ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा अच्छा फ्लरिश करे। बिकॉज अराउंड 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 60 to 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन दिस एग्रीकल्चर। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। तो इसीलिए इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, ये अच्छे से फ्लरिश हो, इसीलिए हमें क्या है इसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। वो भले ही हमारे टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो या इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में हो। अब टेक्नोलॉजी के फॉर्म में पहले जो थी फार्मिंग वो कैसे होती थी? बैल से, ठीक है। बट नाउ वी हैव ट्रैक्टर्स, वी हैव मेनी मोर थिंग्स विच कैन प्रोड्यूस मोर यील्ड एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी से हमने क्या है चीजें न्यू डेवलप करी जिससे हमारी क्या प्रोडक्टिविटी प्लस क्वालिटी दोनों अच्छी प्रोड्यूस हो सके, राइट। Now collectivization, cooperation and abolition of zamindari etc. Land reforms was the main focus of our first 5-year plans. देखो हमें क्या है लैंड रिफॉर्म करना था कि ये हमारा फर्स्ट फोकस था किसका? हमारे फर्स्ट 5-year प्लान का। देखो 1960 और 1970 में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिफरेंट थी, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट थे। तो वो लोग क्या है उस टाइम पे वर्क हार्ड करना चाहते थे कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से और फ्लरिश कर सके। तो इसमें to improve Indian agriculture in 1960 and 1970 embark upon green revolution। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? ताकि व्हीट का प्रोडक्शन हो सके। और व्हाइट रेवोल्यूशन हम सबको पता है ऑपरेशन फ्लड, राइट, related to milk production, the concentration of development in few selected areas। ये इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट करे ताकि क्या है हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से और सक्सेसफुली हो सके। फिर इन 1980 and 1990 a comprehensive land development program was initiated including both। एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कब? 1980 और 1990 में, ताकि क्या है बोथ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ये इंडिया के अंदर ला सके। अब देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के फॉर्म में ये लोग क्या क्या लेकर आए हमारे पास। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, इन्होंने क्या कहा एक प्रोविजन लाए कि हमें क्या है क्रॉप्स जो है उनका इंश्योरेंस करना चाहिए। जैसे कि कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, आग लग गई, कोई डिजीज हो गए, तो इन सब चीजों से क्या है हमें उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका एक इंश्योरेंस करना चाहिए कि इन केस अगर वो क्रॉप डैमेज भी होता है तो हम उसे कुछ मुआवजा दे सके। फिर दूसरा स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, इन्होंने क्या करा ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश करना शुरू किया। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी
और ये क्यों स्टैब्लिश कर रहे थे इन बैंक्स को, ताकि ये बैंक्स जो है वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम लोन लेते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, तो फार्मर्स को क्या है, ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सके। फिर किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये किसानों के लिए शुरू किया गया, इस पे भी क्या इनको लोन मिल सकता है बट एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now special weather bulletin and agriculture programs for farmers on radio। क्या है, एग्रीकल्चर जो है बेसिकली हमारा इंडिया में किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे, तो इनको क्या है वेदर ब्रॉडकास्टिंग हो किस पे, टेलीविजन और रेडियोस पे, ये उन्होंने किया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट की गई, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्होंने स्टार्ट किया MSP, जिसमें क्या हुआ देखिए, स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, रेम्यूनरेशन एंड procurement price for important crops to check exploitation of farmers by speculation and मिडिलमैन। देखो इसमें होता क्या है, इन्होंने एक क्रॉप का प्राइस फिक्स कर दिया जो सबके लिए सेम है, बट हम बीच में बोलते हैं ना कि ब्रोकर्स जो है वो खा जाते हैं, मिडिलमैन जो है वो क्या है फार्मर्स से ज्यादा ले लेते हैं और आगे कम पहुंच जाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दैट्स ऑल फॉर दिस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आफ्टर स्टार्टिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, अब हम ये देखेंगे कि कुछ लोग भी थे जो हमारे फार्मर्स को क्या है हेल्प कर रहे थे, ऐसे लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है या उनको किसी चीज की कमी है तो उनकी हेल्प आउट कर रहे थे। ऐसे ही एक पर्सन थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे, इनको महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया गया था और ये महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उनकी डेथ के बाद इन्होंने ही महात्मा गांधी का जो मैसेज था ग्राम स्वराज का, उसको आगे लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक अ स्पिरिचुअल हायर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की डेथ के बाद इन्हें उनका स्पिरिचुअल हायर डिक्लेयर किया गया। फॉलोअर ऑफ गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, ये भी क्या चाहते थे, ग्राम स्वराज। आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर महात्मा गांधी हिज डेथ, ही अंडरटुक अ पद यात्रा, इन्होंने एक यात्रा की और उसमें इन्होंने महात्मा गांधी का जो मैसेज था उसको कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब आगे लोगों तक पहुंचाया। एक विलेज थी, देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें बुदान। एक विलेज थी पोचमपल्ली, वहां पे क्या थे, कुछ लैंडलेस फार्मर्स थे और वो डिमांड कर रहे थे लैंड की। क्या चाहते थे वो फार्मर्स की, हमें लैंड दिया जाए ताकि हम थोड़ा क्या इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये जो विनोबा भावे थे, इन्होंने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि हमें क्या करनी चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए। बस उसी दौरान एक बंदे थे, उनका नाम था, एक अच्छे लीडर श्री रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, ये खड़े हुए और इन्होंने क्या ऑफर किया, 80 एकर्स ऑफ लैंड। इन्होंने कहा कि मैं अपना 80 एकड़ लैंड जो है वो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और यही चीज कहलाई गई बुदान। ठीक है, नाउ ग्रामदान। सम जमींदार, अब जब इन्होंने ये चीज कर लिया कि 80 एकर्स ऑफ लैंड जो थे श्री रामचंद्र रेड्डी ने डिस्ट्रीब्यूट करी, इसके बाद इन्होंने इस मैसेज को और आगे फैलाया। तो कुछ जमींदार और ओनर्स थे विलेजेस के, उन्होंने क्या ऑफर किया कि हम विलेजेस देंगे जो कि लोग लैंडलेस हैं, और वो चीज कहलाई गई ग्रामदान। सो ये पूरा मूवमेंट कलेक्टिवली नोन एज बुदान ग्रामदान मूवमेंट, और इसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये दोनों ही मूवमेंट्स किसके द्वारा स्टार्ट किए गए, विनोबा भावे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों मूवमेंट्स थे क्या, और ये दोनों मूवमेंट स्टार्ट किसने किए गए, इस विनोबा भावे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इकोनॉमी। अब हमने ये तो बोला है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, बट ये एग्रीकल्चर जो ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो इन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी जीडीपी होती है हर कंट्री की, राइट। एग्रीकल्चर एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमारी 60% to 70% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। पर ये जो हमारी जीडीपी है, हमारा डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, ये जो है ये कीप ऑन डिक्लाइनिंग हो रहा है, कब से, 1951 से। इन 2010 and 11 52% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इन एग्रीकल्चरल फील्ड। 52% एम्प्लॉयमेंट हुआ, मतलब हाफ पॉपुलेशन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट। अब इस चीज के कारण गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टार्ट किया,
देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाए। ये सब किसने स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारी वो क्या थी? 13-14 में 4.2, 14-15 में -0.2, 15-16 में -1.1। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कंट्रीब्यूशन क्या है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, हम सबको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, इट्स वेल्थ, राइट। पुराने टाइम में इंडिगो की बहुत ज्यादा प्लांटेशन होती थी, तो इंडिया की जो चीजें थी वो बाहर भेजी जाती थी, ठीक है। स्पाइसेस अट्रैक्ट करती थी, ब्रिटिशर्स आए, स्पाइसेस का एक्सचेंज करने आए थे। तो ये सारी चीजें जो थी हम लोग पहले बाहर भेजते थे और हम उससे क्या एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी को अर्न करते थे। पर जब 1990 के अंदर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो हम जो है वो प्रोड्यूस तो कर पा रहे थे, बट हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमें और ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट्स थी, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट थी। वी आर एक्सपोज्ड एक्चुअली टू अ न्यू सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड, ठीक है। तो उससे कॉम्बैक्ट करने के लिए हमने कुछ न्यू चीजें करना स्टार्ट किया, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। सपोज आजकल हम बोलते हैं हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा यूज में आ रही है, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि हम क्या है, फर्टिलाइजर उसका यूज नहीं करेंगे और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे और उससे ही हम फार्मिंग करेंगे, ताकि हमारी जो बॉडी है उसको हार्म ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर टुडे नेम्ड एज एग्रीकल्चर। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप्स, food crops, non-food crops, and after that we have discussed about technological and institutional reforms and the impact of agriculture on Indian economy and impact of globalization on agriculture. I hope all of you understood my point, what I have taught you today. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.